Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Let's continue with the today's GFG Peters Week. Today's question name is maximum occurred integer. It's a medium category question, and it has been asked in. Okay, the company tags are not there, but again, I will say it's a very good question. Topic tags are array data structures, and let us see how we can solve this question with all the possible approaches, right? Okay, so let's come back to our notepad again, and we will highlight the points which are important to solve this question or what is given according to its question, right? So, given n integers, and we need to return the maximum occurring integer in the given ranges. If more than one integer exists, then return the smallest one, right? Okay, this is the point also we need to make ensure this. You have to mention extra if condition for this. Now there are two arrays L and R. L of I consists the starting point of the range and R of I consists the corresponding ending point of the range and max. Okay, L and R I given. That is, we have the starting and ending point, and we have the maximum value of the R given as max, right? तो हमें इसका भी use करना है. So for the given example, let's say 2, 1, 3, 5, 3, and okay. So let's take some another example. Okay, so let us take this example as only. So 213539, and from so this is the starting range. So the ranges mentioned here are 2 to 5. Then the main ranges are 1 to 3, and then we have 3 to 9, right? And this is written in the expanded version, right? And in the expanded version, you can clearly see that 2, 3, 5, 1, 2, 3, and what is the maximum time a particular number is repeating? That is 3. Okay, 3 is the answer, right? That is correct. So in other case, we need to also handle that अगर कोई ऐसा number है which has the same frequency, so we need to return the lowest number, right? That is also mentioned, right? Return the smallest one. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो सबसे बेस्ट अप्रोच और सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच यार, देखते ही मेरे को क्या करना है. मेरे को एक की दे रखा है, मेरे को एक उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, मेरे को चेक करना है कौन सी की का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, एंड देयर इज वन एक्स्ट्रा हिफ हैंडल और रिटर्न द स्मॉलेस्ट वन, राइट? तो बेस्ट चीज़ क्या होती है यार की वैल्यू पेयर के लिए? मैप होता है, राइट? हम मैप में सारे एलिमेंट्स को पुश कर देंगे, सारे रेंजेस को पुश कर देंगे, राइट? तो देयर आर एन रेंजेस, राइट? एन रेंजेस के अंदर भी नंबर्स होंगे, सो लेट्स से उनको हम एम लेते हैं. इतने सारे नंबर्स हमें मैप में पुश करने होंगे, एंड एट द लास्ट विल जस्ट आइटरेट इन द मैप एंड वी विल चेक कि किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, करेक्ट? तो एन और एम का एक बार कंस्ट्रेंट देख लेते हैं. सो एन इज नथिंग बट 10 power 6, एंड एम द रेंज इज ऑल्सो 10 power 6, राइट? So this brute force will work definitely, but if you see the time constant according to constraint, that is 10 power 6 and 10 power 6, which will give you 10 power 12, and that is definitely less than 10 power, greater than 10 power 8. Even if our code and approach is right, it will give us the TLE, right? But still, let us solve this problem via this approach, and let us see the TLE coming so that we can verify the 10 power iterations logic, and then we can go ahead. अगर आपको 10 power 8 का चीज़ नहीं समझ में आ रहा, राइट, तो अभी ऊपर एक लिंक आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, टाइम कॉम्स्टिक का एक वीडियो हाउ टू ट्रिक द TLE. डेफिनेटली उसको देख लेना यार, बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, I hope you're able to write the code. Let me give you a very quick code walkthrough. So this would be, first we have made the map, then we have iterated for each and every n ranges and inside it as well using a nested for loop, and we have pushed the integer in the map, right? Get a default एक बहुत अच्छा फंक्शन है, हैंडी फंक्शन यार. अगर मैप में वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब आप इसमें डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो किसी भी की के कॉरेस्पॉन्डिंग. अगर वैल्यू प्रेजेंट है, राइट, तो डायरेक्ट +1 कर दो. अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको पहले 0 से पॉइंट करो और फिर +1 करो, राइट? ठीक है, आगे आता है. फिर हमने एक मैक्स फ्रीक्वेंसी मेंटेन किया क्योंकि मैक्स फ्रीक्वेंसी चाहिए फॉर द कीज़, एंड वी नीड द मिनिमम आंसर एज़ वेल. ओके, so we have a for loop जहाँ पे हमने we have used a for loop iterated in the map. We have stored the key and frequency, right? And if I check if my current frequency is greater than my max frequency, update your max frequency. Or the else case, the extra note was that if my current frequency matches my previous frequency, then you have to check your current key, is it lesser than your actual answer, that is minimum answer, then update your minimum answer as well. And at last we'll just return our minimum answer. Again, the time and space would be n cross m, which will be 10 power 12 in the mathematical iterations, and that is 10 power 8, greater than 10 power 8. So definitely for some of the cases we must get the TLE. Let us verify that as well. Okay, for 5 of the cases we got the TLE, like for 5 of the iterations we are heading over bound to 10 power 8. Now let us get back to the problem and let us see what we have missed in solving this question optimally, right? Also, this question I have already done in past, right? And if you can see in the submissions tab, so that is done in the last submission was 2021, my placement season, and uh, there the max was also given. Yep, max was passed as a parameter, right? But even though you can just okay, let's just start with the intuition and thought process over this.
ओके, सो व्हाट वी गोना डू हियर इज़ यहाँ पे जो मैक्स दे रखा है, राइट? तो ये टाइम पास के लिए नहीं रखा है क्योंकि क्वेश्चन में जितना हिंट मिल सके उसको गैदर करना चाहिए एंड दैट इज़ व्हाई व्हेन आई स्टार्ट अ क्वेश्चन आई ऑलवेज़ मार्क द थिंग्स व्हिच आर गिवन, राइट? दैट विल हेल्प यू इन थिंकिंग फर्दर अहेड। ओके, इस मैक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं यार? पहले तो हम ये देखते हैं, राइट? तो इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम नंबर जो है, राइट? हम यहाँ पे एक छोटा-सा एक और टेस्ट केस लेते हैं, जिसके लिए थोड़ा ड्राइव करना ईज़ी हो जाए। हम लेते हैं 1, 2, 3 एज़ आवर एल एरे एंड एक आर एरे लेते हैं एज़ 3, 5, 7 राइट? एंड अगर आप एरे पढ़े हो, राइट? एरे को अगर आपने पूरे से ऊपर से लेके अंत तक पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आप डेफिनिटली एनकाउंटर किए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट? तो आई वाज़ आल्सो थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ कंप्लीट डीएसए कोर्स बट ठीक है, अभी थोड़ा पीओटीडी करते हैं। माय इक्विपमेंट्स आर लेस, so once we have it, we'll go to that level as well, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पता है कि मैक्स वैल्यू क्या है यहाँ पे। अगर मैक्स नहीं दिया रहता ना, तो हम एलआरएम में ट्रैवर्स करके मैक्स निकाल के लाते। वो ऑप्टिमल मेथड ऐसे ही काम करेगा, राइट? तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टेक्नीक यूज़ होगी, दैट इज़ प्रीफिक्स सम, राइट? प्रीफिक्स सम अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पढ़ भी लेना, कुछ नहीं होता है, ऐसे ए बी सी है, राइट? हम क्या चाहते हैं, ए से बदल जाता है, बी प्लस ए हो जाता है और लास्ट वाली हो जाता है सी प्लस बी प्लस ए, राइट? मतलब जब भी इंडेक्स में आगे जा रहे हैं तो आई प्लस आई माइनस वन करते रहते हैं, ठीक है? ये आप भी बस इतना याद रखो और ध्यान रखो। हम यहाँ पे मैक्सिमम निकालेंगे और हम एक एरे बनाएँगे, ठीक है? यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7 राइट? हम तो 8 लेंथ का एक एरे बनाएँगे। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ठीक? अब ये एक्चुअल 7 है, लेट्स से ये x आता है और लेट्स से नम आता है, तो हम नम प्लस 1 का एरे बनाते हैं। कुछ लोग आप पूछते हो कि भैया नम प्लस 1 क्यों बना रहे हो आप, राइट? मैक्स वैल्यू तो 7 था, तो 7 प्लस 1 8 लेंथ का एरे क्यों बना रहे हो? देखो यार, 7 इंडेक्स को एक्सेस करना है, राइट? अगर आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करो, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग होती है, तो इसका लेंथ क्या हो गया एक्चुअली में 8 हो गया। दैट्स द रीज़न। छोटी बात थी बट बता दिया हमने, ठीक है? हाँ, वापस आते हैं। अब हम क्या करेंगे यार, जो एल का जो पॉइंटर है ना, हम उस पे आएँगे और उसको बोलेंगे कि आप +1 से यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक? सिमिलरली 2 के लेवल से जहाँ-जहाँ पे भी इंडेक्स है, इस एरे पे जाओ, इस इंडेक्स पे जाओ, इसका +1 करो। 3 पे भी +1 करो, ठीक? एंड फॉर राइट आई विल डू जो भी इंडेक्स है, इसका 3 + 1 4 करेंगे, 5 + 1 6 7 + 1 8 राइट? मतलब हमें 8 भी चाहिए, हमें मैक्स +2 का एरे बनाना होगा, राइट? हमें 8 इंडेक्स तक चाहिए, ठीक है? आई होप आपको बात क्लियर होगी कि हम मैक्स +2 क्यों बना रहे हैं, ठीक है? तो हम 4 पे जाएँगे और बोलेंगे कि -1 सिमिलरली 6 पे जाएँगे बोलेंगे -1 8 पे जाएँगे बोलेंगे -1 रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या होता है 0 से फ़िल्ड होती है, राइट? अब हम इसका प्रीफिक्स सम निकालेंगे, ठीक है? प्रीफिक्स सम मैंने बताया था आई y + 1 से रिप्लेस करना है दैट्स इट, राइट? यहाँ पे ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 1 आई होप आपको विज़िबल है। ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 3 3 - 1 विल गिव यू 2 2 + 0 विल गिव यू 2 2 - 1 विल गिव यू 1 1 + 0 विल गिव यू 1 1 एंड 1 - 1 विल गिव यू 0 राइट? ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो राइट, तो एक्चुअल वैल्यूज़ को भूल जाओ यार, हमें इससे मतलब नहीं, हमें प्रीफिक्स सम से मतलब है राइट? तो अगर आप देखो यहाँ पे हमने मैनुअली क्या किया, हमने इस रेंज के लिए मैनुअली निकाल लिया कि कौन-सा एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है। सो यू कैन क्लियरली सी 1 रिपीट्स टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2, 6 टाइम्स 1। सो दिस वाज़ द अबव अप्रोच ऑफ मैपिंग अप्रोच राइट? इसमें हम आइटरेट करके हम चेक कर रहे थे व्हिच वन हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम ई, राइट? अब यहाँ पे अगर आप इसको टैली करोगे यार, आप इसको टैली करो आप एक बार, राइट? यू विल सी कि जो 1 का जो एक्चुअल इंडेक्स पे जो वैल्यू है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी है, राइट? दिस इज़ नथिंग बट माय नंबर इन मैप, नंबर्स ऑफ मैप लेट्स से, राइट? एंड दिस इज़ नथिंग बट द फ्रीक्वेंसीज़ ऑफ प्रेजेंट इन द मैप, राइट? अब देखो 1 1 टाइम है, 2 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स है, देन 5 इज़ 2 टाइम्स, 6 इज़ 2 टाइम्स, 6 इज़ 1 टाइम अगेन, राइट? 4 एंड 5 बोथ आर 2 टाइम्स, राइट? एंड 7 इज़ 1 टाइम, 8 इज़ 0 टाइम्स, ठीक है? ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया कि इस अप्रोच से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो जब मैंने पहली बार क्वेश्चन किया था ना यार, नहीं हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, जब उस समय डीएसए पढ़ रहे होते थे। बट फिर मेरे को ये प्रॉब्लम होती है कि जिसने क्वेश्चन बनाया, तो बनाया तो ठीक है, बट जिसने सॉल्यूशन सोचा, सोचा कैसे, राइट? मेन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ऐसे-ऐसे करो, ऐसे-ऐसे करो, बट ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, 2 तरीके होते हैं समझने के। एक तो कि आप कोई भी क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं कि शुरुआत से ही उसका थॉट प्रोसेस होता है, राइट? और हम क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं। बट कुछ-कुछ क्वेश्चन होता है कि सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा एनालाइज़ करना पड़ता है कि हाँ यार, ये अप्रोच काम तो कर रही है और अच्छे से कर रही है, ठीक है? हम लोग पोस्ट एनालिसिस अब करेंगे। ये अप्रोच काम कैसे किया? वैल्यूज़ जो ऐसे फिट हुए, वो क्या एक्चुअली डोनेट कर रहे हैं, राइट? देखो हमने क्या किया यार, कि जो 1 से 3 का जो रेंज था, राइट? हमने इसको क्या बोला कि आप इसके 1 को ना एक +1 से मार्क कर दो, राइट? और फिर प्रीफिक्स सम लेते जाना। सिमिलरली हमने क्या बोल दिया कि 2 से 5 तक में भी 2 को आप एक बार 1 मार्क कर दो। अगर आप देखो, अब आप ध्यान से देखना, पहले तो ये 1 था ही और ये 2 का इंडेक्स था, राइट? राइट? अगर आप इसको प्लस कर देते, तो एक तो ये 1, 3 वाला रेंज से आ रहा है, एक 2, 5 से आ जा रहा है, राइट?
और यहाँ पे दोनों में 1 लिखा है तो 1 + 1 2 हो जाता, राइट? आई होप आपको विजुअलाइज़ कर पा रहे होगे यार कि प्रीफिक्स हम यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, राइट? हम जस्ट मार्क कर रहे हैं स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, राइट? बीच में जितने भी वैल्यूज़ हैं, इसलिए अगर स्टार्टिंग में मार्क किया है और उस +1 को साथ लेके जाए राइट हैंड से, तो जितने भी नंबर्स उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, राइट? तो इसको मैं और आगे नहीं बोलूँगा, राइट? ये जो भी स्टेटमेंट बोला अगर आप नहीं समझा तो वापस से खुद से ट्राई करना, आपको डेफिनिटली समझ में आ जाएगा, राइट? ठीक है। वापस से अब आई थिंक वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। अब हमें बस इसमें ट्रैवर्स करना है, इस पर्टिकुलर एरे में चेक करना है किसकी व्हाट इज़ द मैक्सिमम। वी जस्ट नीड टू फाइंड द मैक्सिमम। जस्ट नीड टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ दिस एरे एंड दैट वुड बी इट। दैट वुड बी द final situation of our question. What is the time and space? So time is again. So let us discuss space. So O of max plus 2 precisely, right? And that was the reason यार इन्होंने max दे रखा था. वो चाहते थे हम इसका use करें, right? And the technique is again prefix sum. And what is the time complexity? So we have traversed in L and R array to mark L of I plus plus and R of I plus 1 minus minus, right? We have done this thing array of and array of. So this is the thing which we have done, right? So it would be n plus max, right? Because we are traversing in the max array to get the frequency as well. So ठीक है यार, अब वीडियो यहीं पॉज करते हैं. Please try to go to this approach by yourself and we will see the code in action. ठीक है, let's see the code now. So again, I will give you a code walkthrough because सब कुछ समझा दिया है मैंने obviously in the dry run. Okay, so what we have. So we have a for loop that is marking array of L of I plus plus and R of I plus 1 minus minus. And we have made an array of max plus 2. I hope आपको plus 2 क्लियर है यार, क्योंकि हमने राइट नहीं किया तो आप एक बार वीडियो में पीछे जा सकते हो, हमने वहाँ समझाया, आप एक बार फिर से देख सकते हो. So int max is equals to array of 0. As of now, we are marking the current element as our answer. And we are starting from I equals to 1 to less than max plus 1. ठीक है, मैक्स प्लस 1 एंड वी हैव आई प्लस प्लस. अब हम यही चेक कर रहे हैं, हमने सबसे पहले प्रीफिक्स सम किया, साथ ही साथ हमने ये भी चेक कर लिया कि अगर जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, इफ इट इज़ अगर हमारा जो करंट वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन द मैक्स, देन डेफिनिटली अपडेट योर मैक्स एंड दैट इज़ इट. हमने ये चीज़ क्यों नहीं हैंडल की भैया, आपने ये चीज़ क्यों नहीं हैंडल किया कि अगर फ्रीक्वेंसी सी में स्मॉलेस्ट वन चाहिए, हम ऑलरेडी शॉर्टेड ऑर्डर में ट्रैवल कर रहे हैं यार भाई, 0 से लेके एंड तक जा रहे हैं. तो हम ऑलरेडी छोटे वैल्यू को ही अपना आंसर दे रहे हैं, तो वो चीज़ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? ठीक है. अब आप दूसरा क्वेश्चन ये अच्छा इसको सबमिट करते हैं. व्हाइल इट इज सबमिटिंग, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछे कि आपने मैक्स प्लस 1 तक क्यों ट्रैवर्सल किया, मैक्स प्लस 2 के आरे बनाई फिर क्यों, राइट? तो उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ. उसका रीज़न ये है कि देखो हमने बनाया भले ही मैक्स प्लस 2, राइट? एंड मैक्स प्लस 2 वाज़ डिनोटिंग व्हिच वन? दिस 8, राइट? और हमारा हमें जाना किस पे था? हमें जाना सिर्फ़ अपने मैक्सिमम एलिमेंट तक ही जाना था, राइट? तो फिर बनाया ही क्यों? बनाया इसलिए क्योंकि हमने उसका प्लस 1 को माइनस 1 उसके प्लस 1 इंडेक्स को माइनस 1 से रिप्लेस करना था. एंड वी जस्ट वांट टू गो टिल मैक्स प्लस 1. अगर यहाँ पे मैक्स प्लस 2 भी लिख दोगे तो ऐसा कोई बात नहीं है यार, मैंने बस प्रिसाइज़ली लिख दिया कि हम यहीं तक ट्रैवर्स कर रहे हैं, राइट? तो ठीक है, वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं. सो समेशन हो गया यार. अगेन इट इज़ O ऑफ n प्लस मैक्स एज़ टाइम वेलोसिटी एंड O ऑफ मैक्स एज़ स्पेस वेलोसिटी. तो सबमिट करते हैं, सबमिशन ऑलरेडी हो गया. लेट्स मीट अगेन दैट नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस.